So let's start with operator overloading today, right? Okay, so now if I have two integers, 2 plus 5, ठीक है, तो ये जो 2 and 5, these are the operands, yes, and plus जो है 2 and 5 are operands. 1 minute, few people are joining. Okay, so they are operands and ये जो हमारे पास में प्लस है दैट इज द ऑपरेटर, ठीक है, तो ये प्लस इज द ऑपरेटर। तो हमारे पास में बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, राइट। तो ये जितने भी हमारे पास यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, दे आर मेंट टू वर्क ऑन द प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, लाइक हेयर 2 and 5 आर द इंटीजर्स, तो हमने वो इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर क्या है? प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। ऐसे ही जो फ्लोट है या करेक्टर है, these are the predefined data types. So the operators, this unary and binary operators, these are meant to work on the predefined data types. But if I have a concept of class here, so class, let us suppose I have a class here, तो main में हम क्या करते हैं? main में एक class का object बनाते हैं। तो मैंने object 1 and object 2 बनाया, ठीक है। So A is my user defined data type, right? This is a class, so A is a user defined data type. Now if I have to write obj1 plus obj2, yes, so if I have to write obj1 plus obj2, now this plus will not work for the object 1 and object 2, right? क्यों? क्योंकि जब हम एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर कुछ मेरे पास में a, b डेटा मेंबर्स हैं, तो now it will ask, it has to first recognize के ऑब्जेक्ट 1 के में दो डेटा मेंबर्स हैं a एंड b, ऐसे ही ऑब्जेक्ट 2 में भी दो डेटा मेंबर्स हैं a एंड b। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट 1 के a में ऑब्जेक्ट 2 b को ऐड करना है या ऑब्जेक्ट 2 में भी a को ऐड करना है, so somewhere it has to be defined, right? So this, if I directly write object 1 plus object 2 or I use some other operator here, so that will give you an error, right? So we have to create a scenario where this plus or any other unary or binary operator should also work for the same purpose as if it was working for the predefined data types like integer, float and character. Fine. तो उसके लिए मैंने पहले ये एग्जांपल कराई थी, इसमें पहले मैं आपको लिख के करवा देती हूँ, ठीक है। चलो, तो here I have a class test here, ठीक है। 1 minute, few people are there, waiting room. Hello. I have a class test here, and inside this class test I have an integer. So now this is in private, and in public I create a get function. इसमें मैं क्या करती हूँ, इसको cin ले लेती हूँ, ठीक है। I take input for this data, okay. Then what happens? I have another function called compare. कंपेयर नाम का मैं फंक्शन बना रही हूँ, जिसमें हमने इन दोनों, नाउ लेट अस सपोज, नाउ फर्स्ट आई आल्सो क्रिएट इन मेन, आई क्रिएट ऑब्जेक्ट, सॉरी, class was test, I create one object, I create second object. So this object 1 has some data. Object 1 के a में हम कैसे data डालेंगे? with the help of this get function, ठीक है। Now similarly object 2 will also call this get data, sorry, get function, and then I can put some data inside object 1 के a में. Why? Because I have object 1 dot a में data जाएगा इससे, ऐसे ही दूसरा जो है object 2 dot a में data जाएगा, ठीक है। Now I have to compare whether object 1 dot a and object 2 dot a are equal. तो आपको जब याद होगा, हमने पुराना एक बार जब हमने ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट किया था, तो हमने एक उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इम्प्लिसिटली डेटा जाता है, और देयर वी हैड क्रिएटेड वन बिग फंक्शन, राइट। देयर वी हैड फाउंड के इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा डेटा मेंबर ग्रेटर है, ए डेटा मेंबर, राइट। तो सिमिलर टर्म्स पे मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर एक कंपेयर नाम का फंक्शन बना दिया। तो यहाँ पर मैं उस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, yes, because I will be defining here. So for in definition I will be writing जो normal implicitly pass हो रहा है,
फर्स्ट आई विल राइट हियर ऑब्जेक्ट 1 विल कॉल कंपेयर फंक्शन, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट 2 को दिया जाएगा. सो नाउ आई हैव टू क्रिएट, आई विल बी राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस compare function. Okay, so here I have object 2, so here I am writing object this object 2, and then if a is equal to, because for comparison I have to write is equal to operator. Now I will be writing t2 dot a. अगर a जो है, जो first object का है, that is equal to t2 object के a का के equal है, then you have to write, I will be writing C out. I will be writing equal. Otherwise, else में I will be writing not equal. Right? ठीक है, ये हमारे पास में चलेगा. Okay, so now I am writing this compare. I am calling this compare फंक्शन और साथ में मैं यहाँ पर रिटर्न 0 लिख देती हूँ. ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया एंड नाउ आई एम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट. तो जो भी मैं पहले ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए में मेरे पास में आई हैव टू गिव सम वैल्यू, देन ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए. सो फर्स्ट आई एम गिविंग 12, सेकंड आई एम गिविंग 67. सो इट इज प्रिंटिंग नॉट इक्वल. ठीक है, ये हम नॉर्मली एक फंक्शन के हेल्प से तो हम करते ही आए हैं. नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू ओवरलोड द ऑपरेटर. तो ऑपरेटर देखो, अब नॉर्मली मैंने आपको क्या बोला कि हम ऐसे ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें इंप्लीमेंट करवाने हैं, एंड देयर आई विल बी यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है, अच्छा, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब मैं मेन के अंदर तो कोई ऐसा सिनेरियो बनाऊंगी जहां मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ में ये वाला ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ. ठीक है, मेरी एग्जांपल में मैं क्या ऐसा कुछ सिनेरियो में बनाऊंगी जिसमें मैं क्या करती हूँ, इस ऑब्जेक्ट के साथ में, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो मेरा 1 है, आई विल बी यूजिंग द ऑपरेटर इक्वल टू, right? I will be using this operator equal to with object 2, right? So this kind of scenario I have to write in main and it should work. So right now it will not work because I have to overload this operator. अच्छा, अब हम पहले देखते हैं कि ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, right? हम कैसे इसको implement करेंगे. So normally what happens for a function like a general function, I am writing return type. मैं एक रिटर्न टाइप लिखती हूँ, फिर फंक्शन का नेम होता है, एंड देन यू हैव आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स. फर्दर आई हैव दिस डेफिनेशन, आई कैन हैव डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, राइट. सिमिलर टर्म्स पे मैं क्या करती हूँ, रिटर्न टाइप लिखती हूँ, दिस इज रिटर्न टाइप. नाउ आई विल बी राइटिंग ऑपरेटर कीवर्ड. See this operator, I have written operator और ये bold में आ गया, right? This is a keyword, so we'll be writing operator keyword. उसके बाद में हम लिखेंगे symbol, इसका operator का symbol. ठीक है, जो ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है उसका हम सिंबल लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में अगेन आर्ग्यूमेंट लिस्ट. इफ यू हैव एनी आर्ग्यूमेंट देन वी विल बी राइटिंग द आर्ग्यूमेंट. इफ यू आर नॉट हैविंग एनी आर्ग्यूमेंट वी विल राइट इट एम्प्टी. ठीक है, empty brackets, and then inside these curly braces we'll be writing the definition of the operator. ठीक है, तो सेम ऐसे जैसे फंक्शन होता था वैसे बस ये वाली टर्म्स को मेरे को फॉलो करना है, राइट. सो आई विल बी राइटिंग दीज थिंग्स. सो नाउ लेट अस उसको थोड़ा, जो हमारा कंपेयर नाम का फंक्शन था उसको थोड़ा हम ठीक करते हैं इस लाइन के हिसाब से, कैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे. ठीक है, तो ये मेरा कंपेयर नाम का फंक्शन था. इसमें मैं क्या करती हूँ, आई हैव वन रिटर्न टाइप. ठीक है, सॉरी, आई हैव रिटर्न टाइप. अब मेरे को क्या लिखना है, ऑपरेटर कीवर्ड. ऑपरेटर कीवर्ड साथ में मैं क्या लिखती हूँ, डबल इक्वल टू. डबल इक्वल टू क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ इसको यूज करना है, क्योंकि मुझे मेन में इसको यूज करना है. ठीक है, आप कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं. हम आगे इसमें देखेंगे भी कि कैसे ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते. ठीक. तो हेयर आई हैव रिटन डबल इक्वल टू, और डेफिनेशन मैंने सेम एज इट इज दे रखी है. आप इसके अंदर कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं. देखो, डेफिनेशन आप जो भी देंगे इसके अंदर जो कोड लिखेंगे दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन दिस ऑपरेटर इज बीइंग कॉल्ड इनसाइड व्हाट, इनसाइड द मेन फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ अब मैं क्या करती हूँ, अब ये वाला कंपेयर नाम का फंक्शन अब मेरा नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ. सो आई हैव दिस obj1 is equal to obj2, right? ठीक है, so I'm saving this and again I'm executing it, right?
let us see what happens. So first it will wait for obj1 dot get and obj2 dot get. ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इन दोनों को वैल्यूज देनी है इन फॉर द डेटा मेंबर्स A. So I am again giving 12 and let us suppose I am giving 45. मैंने यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज दे दी, obj1 के लिए 12, obj1 dot a के लिए 12, obj2 dot a के लिए 45. So now what happens here, obj1 equal to obj2. जब अब यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ, so this 22nd line will get executed. तो उसमें क्या है, नॉट इक्वल, राइट. ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल गेट्स प्रिंटेड, राइट. ठीक है, तो इस यहाँ पर अब डबल इक्वल टू भी काम कर रहा है. ओके, नाउ हाउ दिस इज वर्किंग, हाउ इट इज वर्किंग, सो वी हैव टू सी. देखो ये ऐसे ही काम करता है जैसे ये ऊपर कंपेयर नाम का फंक्शन जैसे काम किया. ठीक है, तो कैसे, obj1, दिस वाज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट. नाउ कंपेयर की जगह देखो, कंपेयर तो फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर इक्वल टू. सो आई एम राइटिंग हियर ऑपरेटर इक्वल टू और साथ में क्या है, एक यहाँ फंक्शन की ब्रैकेट है और यहाँ एक सेकंड ऑब्जेक्ट है जो आपने देना है, राइट. तो हियर आई हैव सेकंड ऑब्जेक्ट इज obj2, राइट. तो यहाँ मैं सेमीकोलन लगाती हूँ. अब मैं पहले वाला कमेंट कर देती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या ये भी ऐसे ही चलता है. Actually this operator is being called like as if it is a function, and where you have written operator equal to and inside the bracket you have given this obj2 argument. ठीक है, तो ये 22 लाइन आई थिंक, हाँ अभी ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है. सो 22nd लाइन जो हमने यहाँ पर, 1 मिनट. तो अगेन if I am writing 12 एंड दूसरा मैंने 45 लिया था, सो दीज आर नॉट इक्वल. तो ये तीनों चीजें, अब जो मैंने आपको तीनों ये देखो तीनों लाइंस लिखी हैं, दे आर वर्किंग सेम, राइट. तो आप एक फंक्शन के हेल्प से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बट नाउ व्हाट इज माय गोल, माय गोल इज टू use the operators for the objects, right. So here I am directly using the operator with the objects. ठीक है, इसको अब ये कैसे काम किया वो हमने ये देखा कि आप जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो इसको एक इस ऑपरेटर को कॉल करता है, एंड इफ इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर देन यू कैन यूज अ सेकंड ऑब्जेक्ट आल्सो, बट दैट विल बी ट्रीटेड एज द आर्गुमेंट. सो both these two lines are same, both these lines are same, they are working is same. ठीक है, I hope you have got the concept of this operator overloading. ठीक है, तो हमने जैसे डबल इक्वल टू को हमने इसमें कराया है, ऐसे ही आप प्लस प्लस नॉर्मल एक जो प्लस होता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी आप ओवरलोड कर सकते हैं. ठीक है, so first we'll go through its theory and then we'll again come back to the programs. ठीक है, okay. So we learn basics about operator overloading. If this is the example A plus B, so we know that plus is the operator and it works on the predefined data type. So A and B, if this these are the operands, so A and B are the operands and plus जो हमारे पास में that is the operator. और operators जो होते हैं वो यूनरी एंड बाइनरी दोनों तरह के होते हैं. तो यूनरी में हमारे पास में सिंगल ऑपरेंड होता है एंड बाइनरी में we have 2 operands, right. तो बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, टर्नरी, all these things need 2 operands to work upon, right. So now existing scenario is that all these operators work on the built-in data types, right. नॉर्मली जैसे 2+3 हो गया, 3 फ्लोट प्लस फ्लोट ऐसे वैल्यूज हैं. यूनरी ऑपरेटर्स भी हमारे पास में बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे वर्क करते हैं या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जिसको आप बोलते हैं. ठीक है, बट ये सिनेरियो हमारा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं चलता है. ठीक, इफ यू डायरेक्टली अप्लाई द ऑपरेटर्स on the objects it will give you error. So what we have to do, we have to make some our solution is that we have to do operator overloading, and that is done by making a function which will redefine the operator such that it works in class objects. ठीक है, तो हमने एक इस एग्जाम्पल में क्या किया था, इस डबल इक्वल टू को ओवरलोड कर दिया. ऐसे ही हम प्लस को भी ओवरलोड कर सकते हैं. आई होप यू हैव रिटन. जैसे अगर मैं प्लस को आपको ओवरलोड करके दिखाती हूँ, तो उसमें जैसे आपने एक बार एक क्लास
कॉम्प्लेक्स नाम की, आई विल नॉट एग्जीक्यूट इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके, इन्फॉर्मिंग के हमने किया था ऐसे फ्लोट और रियल वैल्यू लिया था एंड इमेजिनरी वैल्यू लिया था, राइट। फ्लोट में रियल एंड इमेजिनरी ये दो वैल्यूज ली थी, और फिर पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया था, गेट फंक्शन बना सकते हो आप, ठीक है, void get जो सी इन लेता है या कैसे भी, राइट, तो सी इन रियल ऐसे ही इमेजिनरी, और फिर हमने एक नया फंक्शन बनाया था add नाम का, इसका आपने आई थिंक ऐसे भी लिया था, complex was the return type where we had created one function called add, जिसमें आप सेम complex नाम का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ए ले लेते हैं, लेट अस सपोज ए, एंड complex नाम का ही कॉम्प्लेक्स बी, ठीक है। तो अब अगर आपके पास में ये दोनों हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए एंड बी, व्हाट विल यू राइट हियर, जैसे हम यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सी मैं ले लेती हूँ, सो सी डॉट रियल विल बी इक्वल टू ए डॉट रियल प्लस बी डॉट रियल, ठीक है। ऐसे ही सी डॉट इमेजिनरी विल बी इक्वल टू a dot imag plus b dot imag, ठीक है। ये चीज हम वहां पर करते थे, और साथ में we can return c, this object gets returned, ठीक है। तो अब क्या होता है जब हम मेन के अंदर if I am taking object, which object, ये कॉम्प्लेक्स में मैंने c1, c2 लिख दिया, ऐसे c3 लिख दिया, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स ले लिए। c1 डॉट गेट से आपके पास में c1 कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास में डेटा ऐड हो जाएगा, ऐसे ही c2 डॉट गेट से आपके पास में c2 कॉम्प्लेक्स नंबर में डेटा आ जाएगा, देन c3 यू कैन राइट c3 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, यस, ठीक है। अच्छा, अर्लियर व्हाट वर वी यूजिंग, सी आई हैव क्रिएटेड दिस ऐड फंक्शन, मैंने तो ऐड फंक्शन बनाया है, व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल बी राइटिंग c3 इज इक्वल टू c1 डॉट ऐड, और साथ में ब्रैकेट में c2 मैंने दे दिया, सॉरी, बट वी कैन राइट हियर c3 डॉट c3 इज इक्वल टू c3 डॉट ऐड, क्योंकि मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, ऐड c1 कॉमा c2 ये ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने ये किया है, ठीक है, यस। ऐड नाम का फंक्शन, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स एंड इट इज रिटर्निंग द कॉम्प्लेक्स, राइट, इट इज द रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट, इट इज रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट। मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको दिया। अच्छा, हम डायरेक्टली क्या है, मैं ये नहीं कर सकती c1 plus c2, c1 is the first complex number, c2 is second complex number, I cannot directly add these two numbers, why, because these are the user defined data type, ठीक है। इस c1 के अंदर रियल भी है एंड इमेजिनरी भी है, c2 के अंदर डेटा रियल एंड इमेजिनरी भी है, आप इस डेटा को कौन से डेटा के साथ ऐड करना चाहते हैं, सो दैट हैज टू बी डिफाइंड समवेयर, यस, that we have defined here, a dot real plus b dot real, उसको c dot real में डाल दीजिए, right? So this kind of scenario, directly if I have to write c1 plus c2, so what I'll write, I will be doing operator overloading, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमने क्या पढ़ा है, पहले क्या होता है, रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, और फिर जो ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है, सॉरी ये तो हमने, हाँ ये बाद में कराना है मेरे को, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिटर्न टाइप है कॉम्प्लेक्स, ऐड नाम के फंक्शन की जगह हम क्या करेंगे, ऑपरेटर, यस, कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, प्लस को ओवरलोड करना है हमें, हम ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज प्लस इनसाइड मेन फॉर द ऑब्जेक्ट्स, तो हेयर इसको छोड़ के, अब ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली आई कैन राइट c3 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, एंड फाइनली यू कैन राइट c3, क्या कहते हैं, c3 डॉट डिस्प नाम का अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, इसको मैं एक बार कंप्लीट कर ही देती हूँ, ठीक है। ऊपर मैं हैश इंक्लूड ये दोनों ऐड कर देती हूँ, देन वी कैन एग्जीक्यूट इट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, void get हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, और एक डिस्प नाम का फंक्शन बना देते हैं यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ disp डिस्प्ले, तो मैं यहाँ पर सी आउट रियल
इमेजिनरी, ठीक है, एंड एस इमेजिनरी, ठीक है। तो मेन के अंदर मेरे पास में क्या है, इन मेन I have complex numbers and then I am adding these numbers. So okay, C1, so this will be working like this, like I have C1, you can call this like C3, इसको हम दूसरी terms में कैसे लिख सकते हैं, C3 is equal to C1 dot operator and then you can give C2 as the आर्ग्यूमेंट। तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, a डॉट रियल, तो खाली ये रियल होगा, अगेन दिस विल बी इमेजिनरी एंड यू कैन स्किप दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यस, ओके। सो हियर आई एम सेविंग दिस एंड देन आई एम कंपाइलिंग एंड एक्सिक्यूटिंग। C2, oh, sorry, I forgot to write the operator. Yes, operator plus, तो ये जो प्लस है यहाँ पर ये, ओके, ये दो बार चल रहा है अब ये, ठीक है, मुझे एक बार चलाना चाहिए था इसको यहाँ C3 is equal to C1 plus C2 करके चला देती हूँ। ओहो, वेट लास्ट एग्जीक्यूशन का हो रहा है। So any one, you should write any one of these lines, 26th and 27th में, you can write any one of these lines, right? So C1 dot get के लिए it is taking some time anyways, ठीक है, तो जब ये चलेगा तब हम कर लेते हैं, नहीं तो ठीक है, चल पड़ा। इसमें now I have to give values for real, for first object I will be giving 23, 14 मैंने दे दिया, next के लिए मैं 45, 32 दे दिया, so 68 and 46, this is the sum. So directly आपका क्या है, C3 is equal to C1 plus C2 करके दोनों को add, now you are adding the objects but you are giving definition by operator overloading, ठीक है। तो दोनों आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, C3 is equal to C1 dot operator plus then you can give C2 as the argument, ठीक है। ऐसे हम प्लस को भी ओवरलोड कर सकते हैं, माइनस अगर आपको करना है तो माइनस को ओवरलोड कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसमें इस तरह से ओवरलोड करते हैं, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, ओके। तो इसका हमने सिंटैक्स भी पढ़ लिया है, राइट। तो यूनरी ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हम, अच्छा पहले आप इस पे आ जाइए कि कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। सो दीज आर द ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कंडीशनल ऑपरेटर है, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। देन डॉट ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर अब हम जैसे क्लासेस में यूज करते हैं तो उसमें तो डॉट हमेशा यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, तो इसको हम ओवरलोडिंग में नहीं यूज कर सकते। ऐसे ही डॉट एंड साथ में ये वैल्यू एड एड्रेस ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्शन विद पॉइंटर टू मेंबर, तो ये दोनों इकट्ठे हमने कब यूज किए थे, अगर आपको याद हो तो दिस पॉइंटर में हमने इकट्ठे यूज किए थे। तो ये भी ऑपरेटर हम इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। ऐसे ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी हमारा इसमें क्लासेस में यूज होता है, राइट। That also cannot be overloaded and size of operator can also be overloaded. So you have to keep in mind that these are the operators that cannot be overloaded, right? तो इसके अलावा जो हमारे पास में functions operators हैं उनको हम overload कर सकते हैं, ठीक। तो यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास में क्या होता है, I can यूनरी ऑपरेटर में मेरे पास में एक ही ऑपरेंड होगा। तो अगर हम नॉर्मल ऑपरेटर्स की पहले प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, उसमें भी एक ऑपरेंड था, और यहाँ ऑब्जेक्ट्स के केस में भी हमारे पास में देयर विल बी ओनली वन ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेंड, राइट। देन वी हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी माइनस एंड लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मेरे पास में कहाँ है, एक मिनट, यस। So I have this example, I have test class जिसके अंदर प्राइवेट में ABC डेटा दिया हुआ है, and in get data function I am taking these parameters as the I am assigning these parameters to my data members, ठीक है। डिस्प्ले में मैं इसी तीनों डेटा को मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ, राइट। मेरे को क्या करना है, मेरे को यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है,
हाँ, दिस प्लस प्लस, यू नो दैट दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैंने a प्लस प्लस किया, ऐसे ही मैंने b प्लस प्लस किया, ऐसे ही c प्लस प्लस किया, ठीक है। तो देखो जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा इस फंक्शन को, उसका जो डेटा मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली प्लस प्लस होकर, एंड आई एम रिटर्निंग वैल्यू एट दिस पॉइंटर। सेम आप उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाउ इन मेन, अब मैं क्या करूंगी, मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उसमें वैल्यूज डाल के डायरेक्टली इस प्लस प्लस को यूज करूंगी, ठीक है। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में इंक्रीमेंट दिया है, तो यहाँ पर वो हर एक वैल्यू जो आपने पहले अभी इनपुट दिया था उसको एक एक करके ये इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो T1 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बनाया, and in get data, with the help of this get data, I am assigning the values to A, B and C. This A, B and C जो आपके डेटा मेंबर्स थे, ठीक है, -10, 20 and 30। तो उसके साथ में अभी मैं साथ में एग्जीक्यूट भी कर देती हूँ। तो उसके साथ में नाउ आई एम कॉलिंग द ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस प्लस। इससे मेरे पास में क्या हुआ, ऑपरेटर प्लस प्लस मतलब आप इसको जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है आप इसको कॉल कर रहे हैं ना, तो अब प्लस प्लस में क्या होगा, आपके पास में ये इंक्रीमेंट बाय +1 आपकी ये वाली वैल्यूज हो जाएंगी, -10, 20 एंड 30। So here output will be there. A is 9, B is 21 and C is 31, ठीक है। दोनों केसेस से ऐसे आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर। ऐसे माइनस माइनस का भी कर सकते हैं, सिंपल आप निगेशन का करना है, जैसे आप सिंपल निगेशन का करना है तो आप -a असाइन कर दीजिए। सिंपल निगेशन में क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मल एक सिंपल माइनस, यूनरी माइनस, माइनस कैन बी प्लस एंड माइनस कैन बी बोथ यूनरी एंड बाइनरी, ठीक है। तो अगर माइनस में करना है तो a इज इक्वल टू ये -a ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी ये माइनस के लिए हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर डायरेक्टली कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर मैंने बनाया टेस्ट T2, तो यहाँ मैं उसको कैसे कर सकती हूँ, डायरेक्टली -T2 एंड देन आई कैन डिस्प्ले T2 डॉट करके यहाँ मैं इसको वैल्यू को प्रिंट करा सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यूनरी माइनस जो ऑपरेटर है तो निगेशन आ जाएगा सब, मतलब एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, ठीक है। द रिजल्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने देखा है, जब भी हमने एग्जाम्पल करी है, कोई ऑपरेटर को हमने यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, कोई ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया तो ये एक फंक्शन की तरह ही तो है। यस, जैसे हम नॉर्मल पहले फंक्शन हम करते थे, यूज करते थे, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, उसको तो हम कॉल कर देते हैं, नॉर्मल एक मेंबर फंक्शन की तरह ही तो है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा कि हम इन मेंबर फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है तो देयर आर सम फ्रेंड फंक्शंस आल्सो, है ना, जिसका जो क्या करता है, आपके इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, एंड दैट हैज टू बी फ्रेंड ऑफ दिस क्लास। और ये ग्लोबल एरिया में होता है, ठीक है। इट कैन बी फ्रेंड ऑफ, इट कैन बी अ मेंबर ऑफ अदर क्लास आल्सो, राइट। तो यूनरी ऑपरेटर जो होती है उसमें भी हम जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, यूजिंग नॉन मेंबर फंक्शन, हाँ, ये है हमारा फ्रेंड फंक्शन के साथ में एग्जांपल। तो जैसे हमारे पास में एक कोई, यहाँ मैंने वॉइड ऑपरेटर, यहाँ माइनस को मैंने क्या किया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसमें परफॉर्म करी है ना। ये इसकी डेफिनेशन को मैं बाहर रखूंगी, मतलब ग्लोबल एरिया में, yeah, there also I can write, I can have a function and anyways the object जो होगा that will be taken as the argument, right। तो हम जब friend function use करते हैं in operator overloading, so that has to take the reference of the object as the argument, right। तो इसको जब हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं and it is present in the global area, so this function has to be friend of the class, so that has to be declared as friend of the class। तो आपको पता है कि उसके लिए क्या करते हैं, पहले declaration देते हैं या inside, and then इसके आगे हम क्या करते हैं, friend कीवर्ड लगा देते हैं, and directly we can call inside the main, right। तो डायरेक्टली जैसे होता है हम इसको डायरेक्टली मेन के अंदर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऐसे बना रहे हैं तो, और हमें यहाँ ऑपरेटर के साथ में उसको लिखना है, तो हम इसको माइनस, जैसे टेस्ट x1 है ऐसे -x1 हमने यहाँ पर ऑपरेटर को यूज कर लिया।
ठीक है, so that covers the unary operator overloading without friend function and with by using the non-member function as the friend function. ठीक है, नेक्स्ट कम्स बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग. बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारे पास में ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं. अच्छा, एक और चीज है मेरे पास में बताने के लिए कि जब हम अच्छा एक मिनट, तो इसमें हमने बेस्ट एग्जांपल कौन सी ली थी, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली हमारी कहाँ पर है, ये वाली एग्जांपल. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, इस प्लस को ओवरलोड किया है, यहाँ ओवरलोड किया है. सो दिस इज बाइनरी ऑपरेटर. तो हेयर आई एम यूजिंग दिस ऑपरेटर एज द बाइनरी बिकॉज आई नीड 2 ऑपरेंड्स. ठीक है, अच्छा ये हमें एक चीज ध्यान देनी है कि अगर मैं अपने इस मेन प्रोग्राम में अगर मैं इंटीजर I is equal to 10, j is equal to 20 and then I am writing I plus j, ये मैंने लिखा है, ये भी प्लस एक ऑपरेटर है और ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज किया वो भी एक ऑपरेटर है. ठीक है, तो जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज किया है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के यहाँ कॉन्सेप्ट फुलफिल कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इट इज वर्किंग. यस, but this plus it is all anyways it is having predefined meaning of for addition and it is defined for predefined data types. तो ये ऑपरेटर ओवरराइडिंग नहीं होती इसमें, इसीलिए हम इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ ऑपरेटर ओवरराइडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने अब यहाँ पर प्लस लिखा तो उसको भी ऐसे ही उसको काम करना पड़ेगा. नॉर्मल मैंने 2 इंटीजर्स लेके प्लस लिखा उसमें तो उसको भी ऐसे काम करना पड़ेगा. नो, इट इज नॉट देयर, राइट. दैट इज व्हाई इट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इट इज नॉट ऑपरेटर ओवरराइडिंग. तो जो हमारे पास में प्लस है जैसे माइनस, ये सब ऑपरेटर्स, ये सब इनका प्रीडिफाइंड मीनिंग जो है वो सेव्ड रहता है, वो भी इम्प्लाई आप इधर कर सकते हैं. जैसे नॉर्मली मैंने अगर इसमें ये ले लूं तो सी आउट आई प्लस जे मैं करूं, दैट विल परफॉर्म एडिशन ऑफ आई एंड जे. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वी वर डूइंग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिसमें वी विल बी नीडिंग 2 ऑपरेंड्स. फाइन. और दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटर ओवरराइडिंग नहीं होती, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है. ठीक, ओके. नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन. पहले हमने यूनरी ऑपरेटर विद फ्रेंड फंक्शन किया, तो हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद फ्रेंड फंक्शन इसमें करते हैं. ठीक है, तो हम इसमें कोई एग्जांपल है, ये दे रखी है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाली. तो यहाँ रियल एंड इमेजिनरी डेटा है एंड गेट डेटा हमने यहाँ पर लिया है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. ठीक है, ऐसे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है. अब ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने क्या करना है, हमने क्या किया इसमें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने एक फंक्शन को क्या बनाया, ग्लोबल एरिया में डिक्लेयर किया है. ठीक है, तो मैंने ये ग्लोबल एरिया में एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है यहाँ पर. ठीक, तो इसको अगर मुझे ना, दिस इज, यहाँ मेरी क्लास खत्म हो गई ऊपर और यहाँ से मेन शुरू है इसके नीचे से, तो ये ग्लोबल एरिया में ये फंक्शन बनाया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, राइट. तो ये जो है वो क्लास के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इट विल बी टेकिंग एज द आर्ग्यूमेंट, राइट. एंड वट एवर डेफिनेशन दैट यू हैव टू गिव, यू कैन गिव हेयर. ठीक है, अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करवाना है एंड यू वांट टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास अबव दैट इज डिक्लेयर्ड अबव दिस फंक्शन, so we will be taking this function as the friend of the above class. इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये ऑपरेटर प्लस लिया है और साथ में इसको इसका फ्रेंड बना दिया है, रिटन फ्रेंड कीवर्ड हियर. ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्टली. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉल डायरेक्टली दिस फंक्शन, which function, ऑपरेटर प्लस फंक्शन इनसाइड द मेन. ठीक है, यहाँ पर इस एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बारी. इस एग्जांपल में हम आ जाते हैं. जैसे ये हमारे पास में एक फ्रेंड फंक्शन है, तो ये एक ये एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका हमने डेफिनेशन दे रखी है. जैसे नॉर्मल हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं. ठीक है, प्लस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया है.
और इस फंक्शन को वी हैव डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड ऑफ द अबव क्लास, ठीक है। तो अब हम मेन के अंदर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर प्लस एंड देन आई कैन गिव द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो मेन के अंदर क्या किया, I have created these three objects and here you can see C3 is equal to operator plus और ब्रैकेट में C1 कॉमा C2 डायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मुझे कोई भी मुझे कोई भी ऑपरेंड की यहाँ डॉट ऑपरेटर जैसे हम लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आई एम कॉलिंग ऑपरेटर प्लस एंड देन आई एम गिविंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, फाइन। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं या ऐसे भी है, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद फ्रेंड फंक्शन, क्या विद फ्रेंड फंक्शन, ओके। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमारे पास में इन ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इसको फ्रेंड फंक्शन के साथ में ओवरलोड नहीं कर सकते। However, you can overload these equal to round bracket, square bracket जो array का subscript रहता है या arrow operator, इनको आप overload कर सकते हैं, but if they are the members of the same class, right? They have to be declared in the same class. दूसरा, आप इस अगर इन operators को आप friend function की use से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ओवरलोड नहीं कर सकते मेनली, ठीक है। तो हमें इसका एक तो कौन से ऑपरेटर्स को ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसका ध्यान देना है, दूसरा कौन से ऑपरेटर्स को फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम नहीं ओवरलोड कर सकते, तो उसको भी आपको ये वाले ऑपरेटर्स को देखना है, ठीक है। नाउ दिस इज a normal example. I have to give you another example. Now come to this slide. Okay. We have learned overloading using friend function. हमने overloading through friend function किया है ना। Now if you consider this scenario, A is equal to B plus 2. देखो इधर आ जाते हैं हम, यहाँ आ जाओ, ठीक है। A is equal to, इसके ऊपर पहले आओ, इधर ऊपर। अगर मैं मेन के अंदर यहीं पर ये लिख रही हूँ A is equal to B plus 2, A is equal to B plus 2, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ऐसा एक सिनेरियो देख सकती हूँ that B is the object that is calling some operator, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ operator, and then प्लस ऑपरेटर है और साथ में मैं ब्रैकेट में int 2 लिख दिया, ये 2 एज आर्ग्यूमेंट ले लिया। yes, it can happen। कोई मैंने ऑपरेटर की ऐसी डेफिनेशन लिख रखी है, ऑपरेटर एंड देन प्लस ये ऑपरेटर है, इसके आगे मैंने एक रिटर्न टाइप वॉइड लिख रखी है, हो सकता है कि क्लास में मैंने ऐसा ऑपरेटर बनाया हो। देन इनसाइड हियर आई एम हैविंग वन डेफिनेशन, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। यस, सो इट कैन हैपन लाइक दिस, बी इज द ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर प्लस और 2 इज द आर्ग्यूमेंट, वो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ये हम फ्रेंड फंक्शन में इट इज पॉसिबल दैट यू कैन राइट हियर, है ना। नॉर्मल हम ऑपरेटर्स में भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी ऐसे तो कोई भी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, बट कैन यू थिंक दैट इट्स रिवर्स इज पॉसिबल इफ आई राइट, अर्लियर मैंने क्या लिखा था, a is equal to b plus 2, but now I have written a is equal to 2 plus b. Is it possible? No. यहाँ हम नॉर्मल अगर बिना फ्रेंड फंक्शन के करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। Why? बिकॉज इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 2 डॉट ऑपरेटर और फिर साथ में ऐसा b लिखेंगे, नो ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं है ना, नहीं पॉसिबल ना ये चीज। ऐसे 2, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अगेन कि 2 प्लस b पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज अगर हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखें तो क्या होगा, डेफिनेशन के हिसाब से 2 डॉट, तो पहले हम लिखते ना कि ऑपरेटर के पहले वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसको कॉल कर रहा होता है, तो ऐसे 2 इज इंटीजर वैल्यू, तो दैट इज नॉट पॉसिबल लाइक दिस। तो हम ये चीज जो है ये हमारा फ्रेंड फंक्शन में पॉसिबल है। दिस जनरली a is equal to 2 plus b will not work, but ये friend function allows both the approaches as it is invoked without the use of object, ठीक है, it is used without the use of objects। तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल, कहाँ गई, एक मिनट, वेट,
हाँ, दिस इज द एग्जाम्पल. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है ऑपरेटर प्लस, और इसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट्स ले रही हूँ. एक पहला इंटीजर है, दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सो इसकी कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है कि आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, आप उसमें वो वाला जो नंबर है वो उसको ऐड कर दीजिए. ठीक है. तो ये मैंने अभी इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो प्लस को ओवरलोड किया है उसकी डेफिनेशन ले रखी है. इसके आसपास का आपको पता है कि रियल एंड इमेजिनरी डेटा है, और फिर आप कोई गेट फंक्शन ले रहे हैं, आप उससे यूजर से इनपुट ले रहे हैं, डिस्प्ले से आप आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है. तो इस फंक्शन को मैं फ्रेंड फंक्शन बना रही हूँ, ऊपर मैंने एज अ फ्रेंड ले लिया इस क्लास का. अब मेन के अंदर हम देखते हैं क्या करना है. मेन के अंदर मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, सो आई एम मेनली कंसिडरिंग दीज फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट्स 10 and 20, जिसका मैंने डेटा दिया है 30 and 40 रिस्पेक्टिवली टू C1 and C2. ठीक है. नाउ I can do like this. C3, see this line, C3 is equal to 5 plus C2. तो इसको हम अगर नॉर्मल फ्रेंड के करेंगे तो वो तो 5 डॉट और ऑपरेटर प्लस C2 आएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट हेयर इट इज पॉसिबल दैट 5 प्लस C2 इज पॉसिबल. ठीक है. तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ. 5 प्लस C2 ये वाला सिनेरियो जो हमने यहाँ पढ़ा है, ये वाला सिनेरियो जैसे A इज इक्वल टू 2 प्लस B, मैंने वहां 5 प्लस वो दिया है दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये फ्रेंड फंक्शन में इट इज पॉसिबल. ठीक है. तो it's just executing. Time is getting over. Just 1 minute. Then we'll end the class after that. So it will wait 1 minute. So first हमारे पास में क्या है? हाँ, real and imaginary. I am just taking the value of A only, 10 and 20. और sorry, C2 हमने यहाँ दिया ना 5.C2, तो C2 में 30 and 40 है. तो उसमें अब हमने हमारी जो डेफिनेशन है उसमें 30 and 40 में आपके पास में 30 plus 5, 40 plus 5, तो 35 and 45 जो आपके पास में रियल इज 35 एंड इमेजिनरी इज 45, ये आपके पास में आउटपुट आ गया. ठीक है. तो ऐसा सिनेरियो फ्रेंड फंक्शन में पॉसिबल है, अदरवाइज विदाउट फ्रेंड फंक्शन इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है.